Acute neuropathy, you know very well, it's very common problem in neurological services. और हमारे जहन में जो सबसे पहली बात आती है वो जीबी सिंड्रोम और इस तरह के एक्यूट मायोपैथिक सिंड्रोम्स और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, बहुत सी चीज़ें होती हैं वी सी वेरी फ्रीक्वेंटली इन अवर न्यूरोलॉजिकल वार्ड्स. तो बिकॉज दिस प्रेजेंटेशन वाज गिवन टू मी बाय डॉक्टर सिद्रा, तो मैंने इसको थोड़ा सा देख लिया था. इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव, though it was very simple but very informative, and I think we'll move forward and learn neuropathy types, causes and mimics, signs and symptoms. We will review in next few slides, history, examination and management strategies. तो इसमें कुछ मैं करेक्शंस करना चाहता था, स्लाइड्स को मैं आगे पीछे थोड़ा सा करना चाहता था लेकिन मैं कर नहीं सका. अदरवाइज I have not added anything from my side. So what is neuropathy? It is damage or dysfunction of peripheral nerves, and prevalence is quite high. देखें 2 to 7% globally, and acute cases are rare but critical. These are common signs and symptoms. We usually encounter patients with different presentations and different signs and symptoms. जिस तरह हम टेक्निकली कहते हैं कि they may come to you with negative symptoms or they may come to you with positive symptoms. So numbness, loss of sensation, then positive symptoms like burning, tingling. So they may present with variable symptoms when they have some form of neuropathy. They may have additional motor weakness, and that may lead to paralysis, complete paralysis or partial paralysis of the limbs. In later stages in neuropathies, you may have atrophy as well. अच्छा, कुछ हमारे न्यूरोपैथीज ऐसी हैं क्योंकि इसकी क्लासिफिकेशन में बहुत से सब टाइप्स आ जाते हैं where you may have autonomic impairment, and it is very dangerous, especially in cases where you deal with acute neuropathic conditions. You know very well in acute neuropathies like GBS and porphyria and things like these, in these cases, if you don't pay attention to this aspect of presentation. So if you are simply looking for sensory symptoms or motor weakness and trying to deal with these features of the neuropathy, but you miss autonomic involvement in one or other way, then that may be catastrophic. पैथोफिजियोलॉजी, आपको पता है हम जब भी न्यूरोपैथीज को डिस्कस करते हैं तो we usually deal with two subtypes, pathological subtypes. These may be axonal, these may be demyelinating, or sometimes these may be variably mixed. Electrodiagnostic studies may not be purely axonopathic or demyelinating, but they may give you sometimes mixed feature with secondary damage as well. ये आसान सी स्लाइड है which gives you fair idea about axonopathic process and demyelinating process. ऊपर आपको इंटरनोड्स और नोड ऑफ रेनवियर वगैरह दिखाई दे रहे हैं. नीचे की स्लाइड, आखिरी स्लाइड, आपको वेलेरन डीजनरेशन का कॉन्सेप्ट दे रही है विच इज़ फीचर ऑफ एक्सोनोपैथिक न्यूरोपैथीज, एंड मिडिल वन गिव्स यू आइडिया अबाउट डीमाइलिनेटिंग न्यूरोपैथीज. तो अच्छा, अब एक्यूट न्यूरोपैथी, हमें पता है वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस सब एक्यूट और क्रॉनिक न्यूरोपैथीज इन दिस सेक्शन. तो एक्यूट न्यूरोपैथीज के कॉन्टेक्स्ट में हमें बताया गया कि दे में बी वेराइटी ऑफ एक्यूट न्यूरोपैथीज. वी यूजुअली थिंक अबाउट वेरी फ्यू in our routine clinical practice or in emergency setting when patients come to you, and these may be infectious like Guillain-Barré syndrome or diphtheritic neuropathy. Toxic neuropathies are very important. देखें, toxic neuropathies का मतलब ये है कि it could be drug induced, it could be due to heavy metals, these could be due to organic solvents, or these may be due to
these factors. So history taking is very important. Occupational and environmental exposure to these agents must be looked for in all patients where you have patients with acute neuropathy. मैं समझता हूँ हमारे जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, ये जो टॉक्सिक न्यूरोपैथीज वाला फीचर है, environmental exposure to different toxins, which could be drugs, which could be heavy metals, or which could be organic solvents or otherwise many things. तो इसको शायद इतना ध्यान नहीं देते इस बात पे कि हिस्ट्री में इन चीज़ों को थोड़ा एक्सप्लोर करें. देन मेटाबॉलिक में पोरफायरिया एंड डायबिटीज़, और पोरफायरिया शुड नेवर बी मिस्ड. लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बड़ा मुश्किल होता है. आई हैव सीन मेनी केसेस ऑफ एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफायरिया विद न्यूरोपैथीज. मसला ये होता है कि दे यूजुअली प्रेजेंट विद सम अदर प्रेजेंटेशन एंड न्यूरोपैथी डेवलप्स लेटर. 2-4 केसेस तो ऐसे हैं कि हमें सर्जिकल वार्ड से कॉल आई है कि जी डिस्टेंडेड एब्डोमेन है, एक्यूट एब्डोमेन है, हमने तो एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं, एक दफ़ा आप ओपिनियन दे दें. फिर साइकेट्रिक भी उनमें एजिटेशन और इस तरह के फीचर्स भी होते हैं. तो जो हमने सबसे कॉमन पेशेंट देखे हैं वो रेफरल्स की फॉर्म में थे. अच्छा, फिर कुछ केसेस ऐसे थे कि जी साइकेट्री वार्ड में एडमिट है, डिल्यूजनल है, यंग पेशेंट है, न्यू ऑनसेट फीचर्स हैं, लेकिन डॉक्टर साहब पैरालाइज सा लग रहा है, ही इज़ नॉट मूविंग द लिम्स. तो अक्सर पोरफायरिया के केसेस प्राइमरीली एक्यूट न्यूरोपैथी के साथ हमने अपनी प्रैक्टिस में कम देखे हैं. दे कम विद सम सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट और साइकेट्रिक फीचर्स, and during course of these symptoms, nausea, constipation, acute abdomen, hallucinations, delusions, all these things, they finally develop some form of neuropathy, which mimics the GBS. Diabetic neuropathies may be acute. These must be in the differential diagnosis. They may present like acute diabetic polyradiculoneuropathy, and they may give you GBS-like picture on clinical presentation. Vasculitic neuropathies, नो डाउट CIDP के एक्यूट वेरिएंट हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं, और अक्सर हम एक्यूट वेरिएंट ऑफ CIDP के बारे में उस वक्त सोचते हैं जब हमें पता चलता है कि हमने किसी को GBS ट्रीट करके घर भेज दिया था और 4 महीने के बाद वो दोबारा आ गया, और हम कहते हैं नहीं जी वो तो ही हैड प्रेजेंटेड विद इन फ्यू डेज ऑफ विद ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स और पेशेंट रिस्पॉन्डेड टू प्लाज्मा फेरेसिस. तो टेक्निकली तो इसको इतना जल्दी रिलैप्स नहीं होना चाहिए. फिर ऐसा भी होता है कि 2-3 दफ़ा भी रिलैप्स मिल जाते हैं, तो हमें यकीन हो जाता है कि इट कुड बी एक्यूट वेरिएंट ऑफ CIDP. और आजकल तो मेरे ख्याल में कुछ एंटी गैंग्लियोसाइड पैनल्स और इस तरह की चीज़ें एडवांस आ रही हैं. आई हैव नो एग्जैक्ट आइडिया एंड डिटेल्स ऑफ दीज एंटीबॉडी पैनल्स, लेकिन हो सकता है दीज माइट बी हेल्पफुल टू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूट वेरिएंट ऑफ CIDP एंड GBS एज वेल. पेरानियोप्लास्टिक एंड हेरिडिटरी. तो ये हमें बताया गया कि जी एक्यूट न्यूरोपैथीज ज़रूरी नहीं कि वो एक्यूट प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूरोमस्कुलर वीकनेस जो आप देख रहे हैं वो प्योर न्यूरोपैथी ही हो. आपने मायोपैथीज़ के बारे में भी सोचना है, स्पाइनल कॉर्ड लियंस के बारे में भी सोचना है. MND एक्यूट रेयरली मे बी electrolyte imbalance like hypokalemia. Complex, I have been provided this slide, complex regional pain syndrome, entrapment neuropathies and functional neurological disorders. इसमें मैं जिक्र करना चाहूँगा myelitis का. We do see frequently patients with acute spinal shock due to myelitis where we do not find typical upper motor neuron signs in the limbs or extensor plantars. Though sphincter dysfunction may be discriminatory, लेकिन sometimes due to autonomic dysfunction you may have urinary retention in GBS as well, so we get confused. हम खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको GBS सोचें. बड़े कम फीचर हो रहे होते हैं जो उनको डिफ्रेंशिएट क्लिनिकली कर पा रहे होते हैं सर्टेन सिचुएशंस में. तो कभी कभी उनमें लोअर ब्रेन स्टेम इन्वॉल्वमेंट भी होती है, तो हम सोचते हैं जी GBS में भी हो सकती है, बल्बर इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं हो सकती. So it is good practice to start with MRI studies in these patients as soon as possible. Then you should move to other diagnostic investigations. Myopathies, acute myositis, which are usually infectious, para-infectious, viral. They may sometimes present with generalized weakness and generalized body aches. So,
अच्छा, ये स्लाइड बीच में डाल दी गई। मैं सोच रहा था कि इसको हमें आखिर में रखना चाहिए था। पोरफायरिया, दिस इज फॉर्म ऑफ एक्यूट न्यूरोपैथी, इट यूजली गिव एक्यूट एक्सोनल पैटर्न ऑफ न्यूरोपैथी, और this is metabolic disorder which affects heme production. It is an acute motor neuropathy with abdominal pain and autonomic dysfunction. जैसे सर बता रहे थे, autonomic features, urinary retention, erectile dysfunction, sweating disturbances, orthostatic hypotension, fluctuating blood pressure, tachycardia, bradycardia, almost every feature may be there, and that may be catastrophic, and you have to deal with almost all features of porphyria with this in mind, that porphyria is a problem where liver is primarily involved in the heme synthetic pathway, and your drug selection for all these symptoms and signs, abdominal pain के लिए आपकी पेन किलर कौन सी होनी चाहिए, एंटी हाइपरटेंसिव कौन सी होनी चाहिए, हार्ट रेट को कैसे कर, वो आपने बड़ा सोच समझ के करना होता है। तो साइकेट्रिक सिम्टम्स के लिए आपकी सिलेक्शन एंटीसाइकोटिक्स की क्या होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो दिस स्लाइड वाज देयर इन द मिडिल। अच्छा, हिस्ट्री टेकिंग, सो दीज आर few things. Whenever patient comes to you in outpatient clinic and emergency department with acute neuropathy, you have to ask about mode of onset, sudden or gradual. फिर आपने प्रोग्रेशन पूछनी है कि क्या चीज़ें प्रोग्रेस कर रही हैं या रुक चुकी हैं। डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज typically GBS is symmetrical in onset with ascending pattern, but sometimes uncommonly GBS may be descending, and porphyria is also neuropathy which usually comes with descending pattern of weakness. So pattern, symmetry, asymmetry, these are, but things may be asymmetrical in beginning as well. आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा, ऐसे ही मैं एक asymmetry की बात कर रहा हूँ। We have patient with generalized weakness where we think it could be GBS, वो GBS निकलता भी है, उसको unilateral facial weakness भी है, bilateral facial weakness भी है। पावर में भी कभी कभी थोड़ी एसिमेट्री आती है, लेकिन सिमेट्री इज द रूल, ये आप ध्यान में रखिएगा। बाय द एंड ऑफ 3rd to 4th वीक थिंग्स शुड बी सिमेट्रिक इन जीबीएस। सो एसोसिएटेड सिम्टम्स, पेन की बात हुई, ऑटोनॉमिक की बात हुई, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब एग्जामिनेशन, जनरल एग्जामिनेशन इज इम्पॉर्टेंट, वाइटल साइंस, स्किन एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल, मोटर, सेंसरी, ऑटोनॉमिक एंड गेस्ट असेसमेंट। तो एग्जामिनेशन के हवाले से ये कहा जा सकता है, क्योंकि जब आप न्यूरोपैथी और एक्यूट न्यूरोपैथी की बात कर रहे हैं तो हम जीबीएस से बाहर निकल के भी तो सोचेंगे ना। जीबीएस से हमने बाहर भी निकलना है। इस प्रेजेंटेशन का शायद मकसद ही यही था कि बाकी चीज़ें भी डिस्कस की जाए। तो sometimes skin, mucous membrane and systemic signs and symptoms are also very important when you are dealing with, especially when you have something with vasculitic neuropathy, when you have drug exposure, arsenic, lead poisoning, thallium, ये सारी जो चीज़ें हैं, they may give you sometimes of mucocutaneous involvement, or sometimes they may give you systemic features like liver involvement, kidney involvement. तो बाकी सारी चीज़ें भी बड़ी important हैं when you think about other forms of acute neuropathy which could be related to some other cause rather than GBS itself. तो अब ये clinical features हैं, तो you have to ask about prickling and tingling sensations in the affected body part. तो अब यू हैव टू आस्क अबाउट पॉजिटिव सिम्टम्स के पाँव में जलन तो नहीं हो रही। आपको पता है 2-4 कॉन्सेप्ट या हम टर्म्स यूज़ करते हैं, एलोडेनिया, हाइपरपेथिया, हाइपरएल्जेसिया, इन टर्म्स का अच्छा यूज़ एक न्यूरोलॉजिस्ट को करना चाहिए। और देन नमनेस एंड रिड्यूस्ड एबिलिटी टू फील पेन आर चेंजेस इन टेम्परेचर, दीज आर नेगेटिव सिम्टम्स सॉर्ट ऑफ, ये आपने पूछने हैं दोनों। बर्निंग, स्टेबिंग पेन स्पेशली एट नाइट। तो these are different clinical features you have to ask about. आपको पता है vasculitic neuropathies are very painful neuropathies, very painful neuropathies, and they are usually, they do have electrodiagnostic features of overlapping mononeuritis multiplex which may mimic GBS sometimes.
जब आप क्लिनिकल आप उसका इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टेस्टिंग करते हैं, बज़ाहिर आपको लगता है कि जनरलाइज वीकनेस हुई है, पेशेंट इज़ वेरी वीक, थिंग्स आर प्रीटी सिमेट्रिकल, but on electrodiagnostic testing they give you clue कि they have some form of mononeuritis multiplex or overlapping features, और उसमें आपको सेंसरी इन्वॉल्वमेंट भी मिलती है, मोटर इन्वॉल्वमेंट भी मिलती है, तो बर्निंग, स्टेबिंग, वेरी सीवियर पेन इन वस्कुलाइटिक न्यूरोपैथीज। अच्छा, डिस्टल वीकनेस, नो डाउट your GBS especially starts with ascending pattern of weakness, which may start in distal parts of the limbs and then ascend progressively to the proximal muscle groups and things like these. Vesting and fasciculations, and finally loss of reflexes. तो ये क्लिनिकल फीचर्स हैं जो कि आपको जहन में रखने चाहिए when you deal with patients who come to you with acute generalized weakness and you suspect acute neuropathy. This is also very important, loss of coordination. We have few acute neuropathies which may primarily present with some form of, difficulty maintaining balance or acute onset posterior column involvement like features. They may not stand, they may not maintain balance, they may have weakness or they may not have weakness. फिर उसमें आप एक वर्ड यूज़ करते हैं कि it could be neuronopathy or it could be ganglionopathy or it could be some variant of CIDP GBS where you have involvement of the posterior columns and large fibers in peripheral nerves. So acute onset GBS or acute variant of CIDP or other neuropathies sometimes may present with acute ataxic form of involvement as well. Acute ataxia हो जाता है, बाद में आपको पता चलता है कि जी things are reflexes are absent, और फिर आप उनकी further differential diagnosis के बारे में सोचते हैं। तो coordination itself without motor weakness, without positive sensory symptoms may be feature of acute neuropathy as well. तो अब ये डायग्नोस्टिक अप्रोच है कि आप ये सोच रहे हैं कि एक्यूट न्यूरोपैथी है, इनिशियल लैब्स आपने की, रूटीन टेस्ट किए, इलेक्ट्रोलाइट्स में नो डाउट पोटेशियम का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मैंने तो अपने वार्ड में अपने पीजीज़ को कहा हुआ है कि कोई भी मरीज़ जिसके बारे में आप जीबीएस सोच रहे हो प्रेजेंट नहीं किया करो जब तक पोटेशियम ना लाओ। तो नो डाउट यू हैव टू आस्क अबाउट पोटेशियम, मैग्नीशियम इन दीज थिंग्स, ग्लूकोज, रीनल लिवर फंक्शन टेस्ट। उसके बाद रूटीन में जब पेशेंट लाया जाता है तो नर्व कंडक्शन स्टडीज़, इलेक्ट्रोमायोग्राफी एंड लंबर पंक्चर। नर्व कंडक्शन स्टडीज़ में बी हेल्पफुल व्हेन यू थिंक अबाउट जीबीएस। इट कैन गिव यू डिफरेंट पैटर्न्स और सेंसरी मोटर पैटर्न, प्योर मोटर पैटर्न, प्योर demyelinating पैटर्न। लंबर पंक्चर इज़ वेरी हेल्पफुल। लंबर पंक्चर का मकसद यही होता है कि यू लुक फॉर एल्ब्यूमिनोसाइटोजेनिक डिसोसिएशन। प्रोटीन्स आर वेरी हाई। वी डू गेट फ्यू केसेस जब कभी कभी सेल काउंट 10-20 को टच करने लगता है, वेयर वी गेट कन्फ्यूज कि यार इसका हेपेटाइटिस प्रोफाइल भी करवाओ, HIV सीरोलॉजी भी करवाओ, इसका आप कनेक्टिव टिश्यू प्रोफाइल भी करवाओ, क्योंकि 10 से ज़्यादा सेल मिल गए, नहीं मिलने चाहिए। और अक्सर ऐसा भी होता है कि हमें उनमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती। वी ट्रीट दीज पेशेंट्स फाइनली ऑन GBS लाइन्स एंड दे डू रिकवर एंड दे गेट वेल। लेकिन कहा जाता है कि इफ़ यू हैव मोर देन 10 सेल्स तो you have to think about other possibilities as well, especially HIV, hepatitis serology, SLE and connective tissue disorders and other things. So we usually rely on lumbar puncture in our setup in JPMC, and nerve conduction studies no doubt are done regularly in our department as well. Imaging of spine and nerve roots. स्पाइन, मैंने आपको बताया कि एनी एक्यूट स्पाइनल पैथोलॉजी लाइक माइलाइटिस और कंप्रेसिव लियन शुड बी लुक्ड फॉर। नर्व रूट्स का ये होता है कि समटाइम्स विद गैडोलिनियम यू मे हैव नर्व रूट एनहेंसमेंट इन पॉलीरेडिकुलोपैथीज।
So lumbosacral MRI with or cervical MRI with contrast may sometimes give you enhancement of lumbosacral nerve roots, which is very visible. It shows that this is primarily radiculoneural problem. Other investigations, autoantibodies, genetic testing and infections. तो ये रूटीन टेस्ट हैं जो we do perform in patients with acute generalized weakness where we suspect neuropathy. तो मैनेजमेंट, अब मैनेजमेंट के एस्पेक्ट से नो डाउट ट्रीट अंडरलाइंग काज, पेन कंट्रोल, गाबापेंटिन, प्रीगेबुलिन का आपको पता है दीज पेशेंट्स में समटाइम पोरफायरिया जिस तरह है उसमें यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव एंड वेरी केयरफुल अबाउट सिलेक्शन फॉर पेन कंट्रोल, एक्यूट एब्डोमेन, तो मॉर्फिन एंड दीज कंटेनर्स एंड दीज आर आइडियल ड्रग्स. Though gabapentin may also be used in these conditions, but tramadol is not very good choice. So, बाकी gabapentin, pregabalin are traditional medications which are used. Gabapentinoids, we call them collectively, may be used in neuropathic pains. Specific on the top we have GBS, IVIG और plasmapheresis के बारे में सर ने भी जिक्र किया माइस्थीनिया के कॉन्टेक्स्ट में. We have plasmapheresis facility in our civil hospital and JPMC as well. तो हमारे पास तो एक्चुअली चॉइस भी नहीं होती. IVIG हमारे पेशेंट ना JPMC में अफोर्ड करते हैं ना वो कभी ला के देते हैं, तो we usually rely on plasmapheresis. लेकिन we do go for इन्वेस्टिगेशन कि हम देख लें कि दे आर हेमोडाइनामिकली स्टेबल, दे कैन टॉलरेट दिस प्रोसीजर, दे विल नॉट. फिर अगर ऐसी सिचुएशन होती है हम उन्हें कह देते हैं कि भाई दूसरा ऑप्शन ये है, वो कहते हैं जी हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते, भाई आप कंसेंट देंगे कि हम ये प्रोसीजर करें. बट वी परफॉर्म IVIG एंड रिजल्ट्स आर क्वाइट गुड. टॉक्सिक न्यूरोपैथी, रिमूव टॉक्सिन एक्सपोजर. एक मैं आपको बात बता दूं, हमने जिस तरह ये जिक्र किया ना मैंने टॉक्सिक न्यूरोपैथीज का, कि आप इन्वायरमेंटल और इन ऑक्यूपेशनल चीज़ों के बारे में बड़ा कम सोचते हैं और बड़ा कम पूछते हैं. अब देयर इज लॉन्ग लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस विच कैन गिव यू टॉक्सिक न्यूरोपैथीज. अक्सर दीज आर सब एक्यूट टू क्रॉनिक. ड्रग्स की बात कर रहा हूँ, हैवी मेटल्स की बात नहीं कर रहा. लेकिन ये ड्रग्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, स्पेशली कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स में गिव यू एक्यूट इश्यूज आल्सो. लेकिन विनका अल्कोलॉइड्स, देन ये जो सिस्प्लेटिन और इस तरह के ग्रुप्स आ जाते हैं, उसके अलावा बहुत सी कॉमन ड्रग्स. मेट्रोनिडाजोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्क्राइब. यू हैव पेशेंट्स हु टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली फॉर डिफरेंट रीजंस. इफ यू टेक मेट्रोनिडाजोल 400 mg thrice day for more than 3 to 4 weeks, you are prone to develop some form of acute encephalopathy or neuropathy because of metronidazole induced problems. You have to be careful. Drug withdrawal is the best option. आपको पता है ओल्ड एज में या UTI में बड़ी कॉमनली हमने तो देखा है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई पेशेंट बेड रिडन है और अब इसको नाइट्रोफ्यूरेंटाइन दें, एक गोली डेली दिया करें, क्योंकि वो बार बार उसको यूरोसेप्सिस और UTI में जा रहा होता है. तो एक गोली दे दिया करें नाइट्रोफ्यूरेंटाइन डेली, तो ये इन्फेक्शन सप्रेस होगा. But sometimes during course of the treatment, after 1 or 2 months, 4 months, nitrofurantoin is very common drug which can give you subacute chronic neuropathy. आपके पेशेंट होते हैं एम्यूडेरोन के साथ, फिर एट्रल फिब्रिलेशन के साथ बड़े अरसे से ले रहे होते हैं. इट कैन गिव यू सबएक्यूट क्रॉनिक न्यूरोपैथीज. तो ड्रग्स यूजुअली गिव यू सब. लेकिन ये जो हैवी मेटल्स हैं, I remember very well recently we had a case, my assistant Dr. Shahnaz told me that she told me this patient came to us with acute generalized weakness or subacute generalized weakness with bilateral foot drop, bilateral wrist drop. अच्छा वो हमारी कौन सी बैटरी एक बनती है फेनिक्स, पता नहीं कौन सी बैटरीज बनती हैं, वहाँ पे वो काम करता था उस कारखाने में. तो हमने कहा हम कैसे कंपेयर करें भाई, इसके जो गम्स वम्स देखो, इसकी बेजोफिलिक स्टिपलिंग देखो. फिर हमने ज़ियाउद्दीन से पूछा, उन्होंने कहा 25,000 रुपये में हम सीरम डेड लेवल करेंगे. तो वी वर स्टक, लेकिन वी वर कन्विंस्ड कि इट वाज प्रॉबेबली क्योंकि वो बैटरी
बनाने वाले कारखाने में 8-10 साल से काम कर रहा था, और बायोलेटरल रिस्ट ड्रॉप भी था, फुट ड्रॉप भी था, और उसमें बाकी फीचर एल्ब्यूमिनोसाइटोजेनिक डिसोसिएशन के नहीं थे। तो लेड न्यूरोपैथी में प्रेजेंट विद दीज फीचर्स एक्यूटली और सब एक्यूटली, लेकिन हमें उसमें बेजोफिलिक स्टिपलिंग भी नहीं मिली, जो हमें AKU से स्पेशल रिक्वेस्ट करके कहा कि भाई आप इसको दोबारा। इसी तरह बाकी चीज़ें भी हमें कोई लाइन्स स्पेशली जिंजवा पे और माउथ में इस तरह के फीचर दिखाई नहीं दिए, लेकिन सीरम लेड लेवल हम करवा नहीं पा रहे थे, ट्रीटमेंट डिसीजन वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। तो लेड, आर्सेनिक, देखिए आपको पता होना चाहिए, आपके गांव से, पंजाब से, इंटीरियर से बहुत से लोग आते हैं जो वेल वाटर यूज़ कर रहे होते हैं और रेगुलरली यूज़ करते हैं, और आजकल तो सब सॉइल वाटर बड़ा कंटेमिनेटेड है सिंध में और पंजाब में। आप उसकी रिपोर्ट्स तो पढ़ के देखें, हैंड पंप्स के साथ नीचे से पानी निकाले जा रहे हैं, आर्सेनिक कंटेंट सब सॉइल वाटर में बहुत ज़्यादा है। इट कैन गिव यू सब एक्यूट टू क्रॉनिक न्यूरोपैथीज, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। मतलब कि ये चीज़ें हैं जो अगर डिग करनी है, हिस्ट्री में बातें मरीज से पूछनी है और बैठ के बातें करनी है ना, तो आपको खुद नहीं बताएगा कि मैं हैंड पंप वाला पानी पीता हूँ या मैं वेल से पानी निकालता हूँ या कहाँ से निकालता हूँ, लेकिन इतना गंदा सब सॉइल वाटर है आपके सिंध का और पंजाब का स्पेशली, इतना कंटेमिनेटेड है, तो वो चीज़ भी आपकी हैवी मेटल्स में बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर ये organophosphates, you know very well, they are present in pesticides, insecticides and all these things. We have seen many cases, but they develop first with, choriomimetic symptoms, and it gives you a strong idea कि ये क्या है, फिर they develop neuropathy later on. तो वही है, टॉक्सिक न्यूरोपैथी, you have to be very careful. पोर्फायरिया बातें हुई, हमारे पास वो हीमेटिन और हीम वाले प्रोडक्ट्स नहीं हैं, तो हमारा सारा मदार इन्हीं चीज़ों पे होता है कि जी रिमूव द ऑफेंडिंग एनवायरमेंटल एजेंट्स, ऑफेंडिंग मेडिकेशंस, बी केयरफुल एंड गिव वेरी हाई डोज IV infusions of glucose or dextrose or whatsoever. Autoimmune neuropathy, immunosuppressive, then supportive therapy. So prognosis and follow-up. Prognosis depends upon type and severity. The type and severity of neuropathy affect prognosis. In early intervention, like early diagnosis and treatment, improve outcomes. So this is recently, ये मैं चाहूँगा कि शाहिद साहब भी इस पर कमेंट करें। हम तो क्योंकि JPMC में होते हैं और हम यूजुअली, हमारी कोशिश होती है कि हम उन पेशेंट्स को प्लाज्मा फेरेसिस प्रोवाइड करें, दोज हु कम टू अस विद इन एट मोस्ट 2 weeks ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स। और क्योंकि हमारी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होती हैं, डोनेशंस होती हैं, किट्स मिलती हैं, अब किसी पेशेंट 6 हफ्ते के बाद आ जाए, 4 हफ्ते के बाद आ जाए आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, और हमें पता भी है कि हमारी कंस्ट्रेंट्स कितनी हैं। दूसरे लोग, रिसेंटली वन यंग बॉय केम फ्रॉम रहीम यार खान, और हमारे अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर थे, नाउ ही इज़ इन मिडल ईस्ट। तो उन्होंने फ़ोन किया कि यार ये बच्चा रहीम यार खान में था, तो हम इसको भेज रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा अनरिलेटेड सी बात कर रहा हूँ, उसको कम से कम 6 हफ्ते के बाद हमारे पास आया विद एक्यूट जनरलाइज्ड वीकनेस। उसको पल्स थेरापी मिली थी, वो GBS नहीं था, वी डिड, वो माइलाइटस था शायद। 6 हफ्ते के बाद वी डिड प्लाज्मा फेरेसिस इन दैट पेशेंट। ये जो आई डोंट नो कि रिकमेंडेशन क्या है माइलाइटस में या GBS में, या समटाइम्स वी सी मेनी पेशेंट्स वेयर वी प्रोवाइड देम प्लाज्मा फेरेसिस आफ्टर 4 weeks, एंड आई हैव सीन फ्यू पेशेंट्स डू इम्प्रूव विथ प्लाज्मा फेरेसिस। अब वो उनका नेचुरल टाइम कोर्स होता है या इसका प्लाज्मा फेरेसिस कैन बी डन 4 to 6 weeks आफ्टर ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स एज वेल। तो यंग पेशेंट्स में कभी कभी थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में मसला ज़रूर होता है, चाहे वो माइलाइटस हो, GBS हो, कि कैन वी प्रोवाइड देम दिस फैसिलिटी many weeks after onset of symptoms when primary methylprednisolone fails। तो एंटीवायरल भी ज़ाहिर हम देते हैं। अच्छा, GBS
अच्छा, यहाँ पे GBS को मेरे ख्याल में इन स्लाइड्स में बताया गया है, थोड़ी स्लाइड रह गई है। GBS is a rare but serious autoimmune disorder that causes rapidly progressive weakness, often affecting the limbs and respiratory muscles. While it can affect people of all ages, GBS is more common in men and usually occurs following a recent infection or other trigger. आपको पता है इन्फेक्शन में अक्सर ये होता है. So molecular mimicry triggers an immune response that targets peripheral nerve components leading to damage. Different forms of GBS including AIDP, AMAN, AMSN and Miller-Fisher have distinct clinical and pathological features. So Miller-Fisher, he sometimes may present acutely and we have seen many cases in recent past, Miller-Fisher. So ये GBS के बारे में बताया गया है. You are post graduates, you know very well about these motor, sensory and autonomic features of GBS, symmetrical weakness, progression up to 4 weeks, sensory symptoms may be subjective and autonomic features should also be looked for. Diagnosis के बारे में बताया गया है. Rapidly progressive symmetric weakness, areflexia. Nerve conduction studies can differentiate between demyelinating and axonal forms of GBS. CSF analysis gives you albuminocytogenic dissociation. Management, monitor respiratory function. जिस तरह सर जिक्र कर रहे थे, neck flexors are very important because their involvement usually correlates with diaphragmatic involvement. So if neck flexors are, a patient cannot lift his head off the pillow or neck power is very low, the patient may be in impending respiratory distress anytime. You have to be very careful. बाकी वो जो आप काउंटिंग करवाते हैं, बाकी सारी चीज़ें देखते हैं क्लिनिकल साइड पे वाइटल कैपेसिटी की कोरिलेशन के लिए. आइडियली वी डोंट डू पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट बेड साइड इन JPMC. तो काउंटिंग करवा रहे होते हैं, नेक फ्लेक्सर्स देख रहे होते हैं, ऑब्जेक्टिव एविडेंस होता है, पेशेंट इज यूजिंग एक्सेसरी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन और एनीथिंग लाइक दैट. तो ये चीज़ें गिव यू आइडिया कि आपने पेशेंट को ICU डायरेक्ट लेके जाना है या वार्ड में आप ला सकते हैं. देन टिपिकली IV, IG and plasmapheresis are effective treatment for GBS with similar efficacy depending on availability. तो 80% rehab and prognosis ambulate. Most patients with GBS regain ability to walk within 6 months of diagnosis. Mortality is around 10%, while recovery is often good. Some patients may experience complications in mortality depending on severity and complications. No doubt, इससे ज़्यादा mortality नहीं है if you provide plasmapheresis to these patients and provide them good care. Summary. Early recognition, early identification is essential for effective management. History and examination. History and examination guide the diagnostic process. Targeted management, you make confident diagnosis, you proceed accordingly. Targeted management. Timely intervention, prompt interventions improve patient outcome. Thank you very much. Any questions? जी आपने वो कहा था तो ट्रांसवर्स माइलाइटिस के पेशेंट्स को आई थिंक हमें कोशिश करनी चाहिए, स्पेशली अगर यंग है, एज इम्यून मेडिएटेड ट्रीट करना चाहिए. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स जो न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका के पेशेंट्स होते हैं, दे कैन जस्ट प्रेजेंट विद लॉन्ग, यू नो, थ्री और मोर लॉन्गर ट्रांसवर्स माइलाइटिस. एंड आई would suggest to look into their eyes and do like VEPs if you can. Sometimes they have very subtle involvement of the optic nerves which you cannot pick with your bedside examination, and their VEPs can be prolonged. So I think that may be a very good job aapne kiya. That's a good way to treat transverse myelitis as immune mediated phenomena. And give them a benefit of doubt of plasmapheresis. We usually provide this treatment option to all myelitis patients after even
एनएमओ में तो हम डेफिनेटली प्रोवाइड करते हैं, अगर हमारा एनएमओ पॉजिटिव आ जाए या इवन क्लिनिकल क्राइटेरिया भी मीट करे। बाकी जीबीएस में यंग पेशेंट, सर हमारे पेशेंट को दे दें, 4 हफ्ते गुजर गए, इतनी दूर से आए हैं, टाइम पे पहुंच नहीं सके, आप हमें ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे, 4-6 हफ्ते के बाद उसका डिसीजन करना थोड़ा मुश्किल सा होता है। यंग बच्चा सामने लेटा हुआ है, फ्लैसिड वीकनेस के साथ आया हुआ है, वो डिमांड कर रहा है बार बार कि प्लाज्मा फेरेसिस आप प्रोवाइड करें, ये थोड़ा एक बड़ा मुश्किल सा होता है। हमारे यहाँ तो हम ज़्यादातर मोटर एमएन आमतौर से देखते हैं, तो उसके अंदर भी आई थिंक देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट के अ पार्ट ऑफ दैट इज़ नोडोपैथी, यानी कि जो आपके नोड ऑफ रेनवियर के इम्यून मीडिएटेड blockage at the node of Ranvier, they actually have a better prognosis versus those जिनकी axonal degeneration हो जाए। तो वो फिर आप EMG पे you can actually figure it out कि अगर आप EMG कर रहे हैं, आपको लो एम्पलीट्यूड मिल रहे हैं, बट नीडल एग्जामिनेशन पे अगर बहुत डीनर्वेशन नहीं मिल रही, तो दे मे हैव दी नोडोपैथी, दी जो इम्यून मीडिएटेड डैमेज टू दी राइट। So they might actually do better. वो लगते हैं एक्सोनली की तरह ही हैं, but you know they might do better with all that. अच्छा सर, फिर एक जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टर्मिनल कंडक्शन ब्लॉक का, which gives you impression कि it is primarily axonal process, but it is terminal conduction blocks which can give you absent or low amplitude potentials. Again, it can work. पहले से बता देते हैं यू आर लेट, और हम शायद हो सकता है आप कामयाब ना हो इस प्रोसीजर में, बट वी डू ट्राई, हम दे देते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।